الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إن أول بيت أذع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی دنیا بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے اور بہت وسیع ہے، اور اللہ کی اس حسین دنیا کا سب سے حسین حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، جنہیں ہم خانہ خدا کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے سب سے پسندیدہ مقامات اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ گھر سب سے پسندیدہ ہیں، یہاں بندگی کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر رویا جاتا ہے، اپنے سدھار کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے رب سے بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی مساجد کا کردار، اور اگر ہم اسے اور وسیع کرنے جائیں گے تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مساجد کی 3 بڑی بڑی ذمہ داریاں یا مساجد کے تعلق سے 3 اہم امور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مساجد کے کردار، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت اذع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا تھا
वो बक्का के अंदर है, यानी जिसे हम मक्का कहते हैं। ये मक्का में अल्लाह तबारक ताला के दो इंतहाई बरगुज़ीदा बंदों ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी, जिसे हम बैतुल्लाहिल मुक़द्दस कहते हैं, अल्लाह तबारक ताला का घर कहते हैं, खाने खुदा कहते हैं। इसे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बनाया था। बूढ़े बाप ने और नौजवान बेटे ने अल्लाह की खातिर, अल्लाह की बंदगी के लिए अल्लाह का एक घर बनाया, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में किया और फरमाया कि मुबारकम व हुदा लिल आलमीन, ये बरकत का जरिया था और ये पूरी रूए ज़मीन के लिए, पूरी आलम जह इंसानियत के लिए हिदायत का सबब था। फीह आयातुम बय्यनातुम मक़ाम इब्राहीम, इसमें वाज़ह निशानियां हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है, यानी मकाम इब्राहीमी है। वमन दखलहु काना आमिना, और इस घर में जो आ जाएगा, जो दाखिल हो जाएगा, वो मामून रहेगा, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, उसे मारा नहीं जाएगा, उसे तंग नहीं किया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह के घर का तक़द्दुस है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने घरों को बरकत का जरिया बनाया है। बरकत हमें मुख्तलिफ एतबार से हासिल होती है। एक आदमी अगर अल्लाह के घर से मोहब्बत करता है, अल्लाह के घर में आता जाता है, अल्लाह की बंदगी करता है, वक्त की पाबंदी करता है, तो उसके वक्त में बरकत हो जाती है। उसका वक्त ज़ाय और बर्बाद नहीं होता है। अगर उसकी ज़िंदगी में तंजीम आ जाती है, उसकी ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है। अगर तंजीम ज़िंदगी में नहीं है तो ये वैसे ही है जैसे एक गाड़ी भाग रही हो और उस पर ड्राइवर ना हो। वो कहाँ जाके रुके किसी को खबर नहीं है, उसकी मंजिल क्या है किसी को पता नहीं है। ऐसे ही अगर आप जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिंदगी की रफ्तार आपकी जारी है, लेकिन आपने मुनज़्ज़म नहीं किया है उसे, कहाँ ठहरना है, कहाँ रुकना है, कहाँ इशारा है, कहाँ जो है आपकी रफ्तार तेज करनी है, कोई खबर नहीं है, इसलिए कि मुंतजिम नहीं है उसमें, आपकी गाड़ी का ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी को बे ड्राइवर गाड़ी की तरह मत बनाइए कि ये भागती रहे, जिस सिमत हुजूम है, जिस सिमत भीड़ है, उसी ट्रैक पे आप लगा दें और आपकी जिंदगी उधर भागती रहे। आपको अपनी जिंदगी मुनज़्ज़म करनी है, आपको अपनी मंजिल तय करनी है, आपको कभी रफ्तार बढ़ानी है, कभी स्लो कर देनी है, कभी आराम करना है और कभी जद्दोजहद करनी है, कभी मेहनत करनी है। अल्लाह तबारक ताला के घरों से जुड़ने के बाद इंतजाम की सलाहियत आती है, आदमी मुंतजिम हो जाता है। बरकत इस तरह से हासिल होती है कि अल्लाह की बंदगी मुतअय्यना औकात के साथ हम पर फर्ज है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि नमाज ये मोमिनों पर वक्त के साथ फर्ज कर दी गई है। हम अपनी मनमानी इबादत नहीं करते हैं, मगरिब जब चाहते हैं तब नहीं पढ़ सकते हैं, फजर जब मर्जी होती है तब नहीं अदा कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इन नमाजों को औकात के साथ हम पर फर्ज किया है। और जब वक्त हो जाए तो हमें बंदगी के लिए आना है, अल्लाह तबारक ताला की इबादत करनी है, अल्लाह के घरों में आकर अश्क बहाना है, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फर्ज होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफा नमाजें पढ़ाई, एक अव्वले वक्त में पढ़ाया और एक दफा आकर आखिरी वक्त में पढ़ाया और कहा इन्हीं दोनों के दरमियान नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अफजल अमाल क्या है, अल्लाह तबारक ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसकी वक्त पे अदा कर देना। एक जिम्मेदार आदमी को ख्याल है कि नमाज कब फर्ज होती है और वो फर्जियत उसी वक्त अदा कर दे रहा है, अव्वले वक्त में नमाज अदा कर रहा है, तो ये सबसे बेहतरीन काम है, सबसे अच्छी बंदगी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर हमें उभारा है। लिहाजा हमें नमाजों को अव्वले वक्त में अदा करना चाहिए, वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में तंजीम आ सके, हमारी जिंदगी में इंतजाम आ सके,
हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म हो सके, अगर आप नमाजों के पाबंद बन जाएं, उन्हें अव्वले वक्त में अदा करने की पाबंदी अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें, तो आपके वक्त में बड़ी बरकत होगी। आप सुबह की नमाज पढ़िए, देखिए आपका दिन कितना लंबा हो जाता है, कितना तवील हो जाता है। अगर आप 11 बजे 12 बजे किसी दिन उठ के देखिए, आपके दिन की बरकत कहाँ चली जाएगी आपको भी खबर नहीं है। लिहाजा जब आप वक्त के साथ इन मसाजिद में आकर इबादतें करेंगे, अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकतें अता फरमाएगा। इसी तरीके से एक तहारत और सफाई और नजाफत, जब बंदा यहाँ आता है साफ सुथरे कपड़े में आता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला को हमारी वही नमाज मकबूल है जो तहारत के साथ अदा की गई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलातम बिगैरि तहूर, अल्लाह तबारक ताला कोई भी नमाज बगैर तहारत के, बगैर सफाई और सुथराई के अल्लाह को कबूल नहीं है, अल्लाह मंजूर नहीं करता है। बंदे की नमाज जब अदा हो तो बंदे का लिबास भी साफ सुथरा होना चाहिए, उसका बदन भी पाक होना चाहिए, जिस जगह पे नमाज अदा कर रहा है वो भी ताहिर होनी चाहिए, गंदी जगह नहीं होनी चाहिए। जब इन शुरूत का लिहाज किया जाएगा तभी अल्लाह तबारक ताला हमारी इस इबादत को कबूल फरमाएगा। तो जब बंदा मस्जिद से जुड़ता है तो मस्जिद उसे सिखाती है कि पाक साफ रहे। अल्लाह तबारक ताला खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, अल्लाह तबारक ताला ने कहा जब भी मस्जिद में आओ, जब भी इबादत के लिए आओ, अपने कपड़े साफ सुथरे रखो, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार करके आओ, काम वाले ड्रेस में मत यहाँ आया करो, नाइट लिबास में तुम अल्लाह की बंदगी के लिए मस्जिदों में मत आया करो, एहतमाम किया करो, अच्छे लिबास में आया करो। अपने रब के सामने हाजिरी देने आ रहे हो, अपने गुनाहों की माफी के लिए आ रहे हो, अल्लाह से मुनाजात के लिए आ रहे हो। जब किसी मेहमान के सामने जाते हो, कपड़े साफ सुथरे कर लेते हो, गंदगियां झाड़ के जाते हो, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार करके जाते हो, उससे हया आती है। अल्लाह तबारक ताला के रूबरू आते हो तो क्या हया नहीं आनी चाहिए? अल्लाह के सामने आते हो तो क्या अच्छे लिबास में नहीं आना चाहिए? अल्लाह तबारक ताला से मुनाजात के लिए आते हो तो बन संवर के आया करो, साफ सुथरे लिबास में आया करो, पाकीज़ा लिबास में आया करो, हो सके तो इत्र लगा के आया करो, महकते हुए आओ। अल्लाह तबारक ताला ऐसी इबादतों को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, फरमाया वअहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्किस सुजूद। अल्लाह तबारक ताला ने कहा मैंने अपने इन दो महबूब बंदों से मुआहिदा कर लिया था। अहद किस बात का किया था? कहा अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीन, कि तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि मेरे घर को पाक साफ रखा करो। घर बना देना काफी नहीं है, बल्कि उसकी नजाफत का लिहाज रखना है, उसे पाक साफ करना है। लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्किस सुजूद, उन लोगों के लिए जो मेरे घर के तवाफ के लिए आते हैं, मेरे घर में बैठने के लिए आते हैं, मेरे घर में इबादत करने के लिए आते हैं, वक्त गुजारने के लिए आते हैं, इनके लिए मस्जिद को साफ सुथरा रखा करो। और जो सजदे और रुकू के लिए आते हैं, यानी मेरी बंदगी के लिए आते हैं, तो मेरे घर को साफ सुथरा रखना होगा। अल्लाह तबारक ताला ने इन दो बरगुज़ीदा बंदों से मुआहिदा ले लिया था कि घर तो बना रहे हो, लेकिन इसको अल्लाह तबारक ताला की बंदों के लिए, बंदगी के लिए, तवाफ और जो है रुकू के लिए जो आ रहे हैं, उनके लिए इस घर को साफ सुथरा रखना है। अल्लाह तबारक ताला ने उन दोनों बंदों से सफाई का मुआहिदा किया। ये भी बहुत अहम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई और जो है किबले की जानिब खिड़की की तरफ आपने देखा कि किसी ने थूका हुआ है और वहां बलगम जमा हुआ है, थूक जमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं, एक कंकरी उठाते हैं और उसी कंकरी से उसे खुरच कर साफ कर देते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद की तहारत का हुक्म है। आप अगर मस्जिद से कोई तिनका उठाते हैं तो भी ये आपके लिए कार्य सवाब है। आप भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, आपका रब नहीं भूलेगा। आपकी ये नेकी आपके नामे आमाल में दर्ज हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला ने मसाजिद को हमारे लिए हुसूल इल्म का जरिया भी बनाया है। तकरीबन 300 साल तक
बल्कि 5 सदियों तक हमारी यही मसाजिद तालीम और तरबियत का मरकज हुआ करती थी। यहीं बच्चे सीखते थे, यहीं बच्चे पढ़ते थे, यहीं उनकी तरबियत होती थी, यहीं से मुहद्दिसीन निकलते थे, यहीं से मुबल्लिगीन निकलते थे, और यहीं से अल्लाह तबारक तआला के दुआत तैयार किए जाते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद अपनी जिंदगी ही में रखी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया जाता था, आप बर्दाश्त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाती थी, आप सह लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कहा जाता था, आप नजरअंदाज कर दिया जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जाता था, मार का निशान लेके अपने बच्चों के सामने जाया करते थे, बर्दाश्त था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से रोक दिया गया, अल्लाह तबारक तआला के घर में बंदगी से रोक दिया गया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां भी छेड़ा जाने लगा, आपके ऊपर लाके गंदगियां फेंक दी जाने लगी, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया गया कि अब बर्दाश्त से बाहर है, सब सह लिया जाएगा, सब बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन एक बंदे को अल्लाह के घर से अगर रोक दिया जाए, अल्लाह तबारक तआला के दर से अगर रोक दिया जाए, अगर इन मसाजिद पर पाबंदियां लगा दी जाएं, अगर इन मसाजिद पर निगरानियां बढ़ा दी जाएं और बंदगी भी महाल हो जाए, अल्लाह के सामने रोना भी मुश्किल हो जाए, अपने गुनाहों पर आश्क बहाना भी दुश्वार हो जाए, तब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्के का निजाम बदल नहीं सकते हो, मक्के के दिग्गजों से लड़ नहीं सकते हो, मक्के की क़यादत को चैलेंज नहीं कर सकते हो। एक रास्ता है कि मक्के को हमेशा के लिए तर्क कर दो और हिजरत कर जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर जाते हैं, निहायत दुश्वार गुजार राहों से गुजर के यसरिब पहुंच जाते हैं। अभी मक्के मदीने के अंदर दाखिला नहीं होता है, वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर एक क़ुबा नामी गांव है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं, वहां ठहरते हैं। कुलसूम इब्ने हदम जो कि कबीले के सरदार थे, उनके घर आपकी ज़ियाफत होती है। आप आराम नहीं करते हैं, आप ये नहीं कहते हैं कि दुश्वार गुजार राहों से भागते हुए आया हूं, जान बचा के किसी तरह से पहुंचा हूं, लिहाजा अब मुझे आराम करना है, मुझे अब सोना है, मुझे इत्मीनान और चैन की सांस लेनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर दूसरे ही दिन से लग गए, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी बुनियाद में बजाते खुद शामिल रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन के क़याम के अंदर एक निहायत आलीशान मस्जिद की बुनियाद रख दी। इतनी अच्छी मस्जिद और इस कदर इखलास पे इसकी बुनियाद कि अल्लाह तबारक तआला को ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह तबारक तआला ने इसकी तारीफ फरमाई और कहा, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू। अल्लाह तबारक तआला ने कहा, एक ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है, कोई मकसद नहीं है, कोई दुनियावी मफाद वाबस्ता नहीं है, बस अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह की खातिर मस्जिद की बुनियाद रखी है। और फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, और इसमें ऐसे ऐसे नमाजी आते हैं, ऐसे मेहमान इसके हैं जो सफाई और सुथराई को पसंद करते हैं, जो पाक रहना पसंद करते हैं, जो मानवी सफाई भी चाहते हैं और जाहिरी सफाई के भी आदी हैं। अपना लिबास भी साफ रखते हैं, अपना बदन भी साफ रखते हैं, अपनी मस्जिद भी साफ रखते हैं, अपनी नजर भी साफ रखते हैं, अपना जिगर भी साफ रखते हैं, अपने अपने आज़ा व जवारिह को मुकम्मल तहारत का पाबंद बनाए हुए हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने कहा, ये साफ रहने वाले लोग, ये साफ दिल के लोग, ये पाक नजर के लोग, ये पाक लिबास के लोग मुझे बहुत पसंद हैं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह तबारक तआला ने इस मस्जिद की भी तारीफ की और इस मस्जिद के मेहमारों की भी तारीफ की, इस मस्जिद में इबादत गुजारों की भी तारीफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद मदीने के हालात जब सामने आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसका अंदाजा हो जाता है, आपके चाहने वालों के इखलास का अंदाजा हो जाता है, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सारी जरूरियात थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब नजरअंदाज किया। ये बेलिबास लोग
बेघर लोग और बेसरो सामान लोग भाग के आए हुए थे आपकी मोहब्बत में, आपके दीन की नुसरत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत में। बड़े बड़े सेठों ने अपनी तिजारत की कुर्बानी दे दी थी, बड़े बड़े मनसबदारों ने अपने मनसब की कुर्बानियां दे दी थी, बड़े बड़े ऐश आराम पसंद लोगों ने अपने आराम की कुर्बानियां दे दी थी। भागे हुए आए थे, लुटे पिटे लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके घर का भी इंतजाम करना था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तिजारत उजड़ गई थी, उनके लिए मंडी के कयाम की भी जरूरत थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जिसे फराहम किया, अल्लाह तबारक ताला का घर है, मस्जिद नबवी की तामीर है, अपने ननिहाली रिश्तेदारों दो जो है यतीम बच्चों की जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, और वो भी मुफ्त में नहीं लिया, हदिया और तोहफे में नहीं लिया, सदकात और खैरात के नाम पर नहीं लिया। वो चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन मुफ्त में ले लें, इसलिए कि मस्जिद बना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं कीमतन इसे लूंगा। आपने उसकी कीमत अदा की और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जो मुशरिकीन की कब्रें थी उसे उखड़वाया, वहां जो सूखे हुए खजूर के कुछ झाड़ थे उसे कटवाया, वहां जो घास फूस उगी हुई थी उसे साफ कराया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से 5 फीट गहरी उसकी बुनियाद खुदवाई, 150 फीट लंबाई और तकरीबन 150 फीट की चौड़ाई ये बुनियाद बनी रखी गई इस मस्जिद की, और खजूर के तनों का टेक लगाया गया, खजूर के पत्तों की छत बनाई गई, और इस तरीके से इस्लाम की दूसरी शानदार मस्जिद तामीर हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी यहाँ देखिए। मस्जिद आपने सुना बन गई, लेकिन मस्जिद के इबरत और दुरूस उसके अंदर भी पोशीदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से ईंट ढोते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर पसीना लोग देखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर धूल और मिट्टी देखते थे, आपके हाथों में ईंट देखते थे, आपके कंधों पर पत्थर देखते थे, आपके चाहने वाले दीवाने आपके सामने आते थे और कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, आप ये मशक्कत क्यों उठा रहे हैं, आप ये परेशानी क्यों उठा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों के चेहरे पर नजर दौड़ाते, हल्का सा मुस्कुराते और उसके बाद फिर अपने काम में लग जाया करते थे, इसलिए कि अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह तबारक ताला का घर तैयार हो रहा है, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। अल्लाह एक एक अमल का हिसाब रखेगा, जितनी हमने हिस्सेदारी ली है अल्लाह भुलाएगा नहीं। अगर हमने पसीना बहाया है हमारे नामे आमाल में दर्ज हो जाएगा, अगर हमने पैसा खर्च किया है हमारे नामे आमाल में दर्ज हो जाएगा, अगर हमने उसकी कोई कानूनी दुश्वारियां हटाई हैं हमारे नामे आमाल में दर्ज हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बखूबी जानते थे, इसीलिए आप बनफ्से नफीस उसमें शामिल थे और इस तरीके से मस्जिद नबवी की तामीर हो जाती है। अब वहां बच्चे पढ़ने आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस घर को आबाद करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कराते हैं, मस्जिद के मशरिकी हिस्से में जाके टेक लगा के बैठ जाया करते हैं, शागिर्द वहां जो है सफ़ें लगा के बैठ जाते हैं। सहाबा कहते हैं कि अगर हमारी तादाद ज्यादा होती थी तो हम जो है 2 ऐसे सफ़ें बना के बैठ जाया करते थे, बीच में जगह खाली कर दिया करते थे। अगर तादाद कम होती थी तो दायरे की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के बैठ जाते थे, आप वहां तालीम देते थे, आप लोगों की तरबियत करते थे, आप वहां जहन साजी करते थे। उस मदरसे के पढ़े हुए जितने लोग निकले वो हर मैदान के हीरो थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जो है एक निहायत मुख्तसर मुद्दती मदरसे में एक सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सिर्फ 3 साल तक उस मदरसे में तालीम हासिल की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूम तरबियत का शर्फ पाया है और तकरीबन 5000 से ज्यादा हदीसें उन्होंने हिफ्ज़ कर ली और उसे रिवायत किया, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले सहाबी बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मस्जिद में 70 से ज्यादा बैक वक्त 70 से ज्यादा मुकीम तलबा रहा करते थे। एक सहाबी कहते हैं, मैंने असहाबे सुफ़ा में से 70 से ज्यादा बच्चों को ऐसे भी देखा है कि जिनके तन पे लिबास नहीं था, जिनका पेट नहीं भरता था, जिनकी भूख नहीं मिटती थी, जिनकी प्यास नहीं मिटती थी, लेकिन ये मुशक्कत बर्दाश्त करते थे इल्म की खातिर। अल्लाह तबारक ताला की इस रूहानी घर से जुड़े हुए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद किया करते थे और उसे दूसरों के लिए
नकल फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा व मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। ये मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के अंदर तालीम हासिल करने वालों की यहाँ फजीलत बयान फरमाई। एक दफा एक वाकया जिक्र किया, कहा 3 लोग आए और एक आदमी अल्लाह तबारक तआला के घर में पनाह लेना चाहता था, आ गया, अल्लाह के घर में पनाह ले लिया, अल्लाह की बरकतों को लूटने लगा। एक दूसरा आदमी था, अल्लाह के घर के जिक्र में शामिल होने से उसे हया आई और वो नहीं आया, अल्लाह ने भी उसे बतौरे हया उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे बरकत से महरूम कर दिया। और एक तीसरा आदमी था जिसने तकब्बुर दिखाया और कहा कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मेरा स्टेटस इतना ऊंचा है, मैं कैसे इन गरीबों की मजलिस में बैठूंगा, मैं कैसे अल्लाह के घर में जाके वक्त गुजारूंगा। कहा यह मेरी शान के खिलाफ है। किब्र दिखाया, तकब्बुर दिखाया, अल्लाह ने भी उसके साथ तकब्बुर दिखाया और उसे महरूम कर दिया हर खैर से, हर बरकत से और हर सवाब से। अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया, कहा कि वमन दखलहु काना आमीना। और भी कुछ मिसालें थी जिसे बयान करना था, लेकिन चूंकि एक अहम नुक्ता जो मैं बताना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया कि ये अमन और शांति का सबब है। ये अल्लाह के घर, यहाँ अमन बढ़ता है, यहाँ शांति बढ़ती है, यहाँ लोगों को रवादारी सिखाई जाती है, यहाँ लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ इंसानों को इंसान बनाया जाता है, आदमियों को आदमी बनाया जाता है। अल्लाह तबारक तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा अगर कोई आदमी अल्लाह के इन घरों में आए, अपने नेज़े के साथ आता है, अपने असलहे के साथ आता है, तो तीर के नोक पर अपना हाथ रखे, कहीं किसी मोमिन भाई को तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं किसी के बदन पे खरोच ना आ जाए, कहीं किसी को ईजा ना पहुंच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपने देखा कि एक सहाबी आते हैं और जो है गर्दन फलांगते हुए आगे वाली सफ में आने की कोशिश करते हैं, आपकी नजर पड़ जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन रोक देते हैं, फौरन टोक देते हैं, कहते हैं इजलिस फकद आज़ैता व अनैत, जहां हो वहीं बैठ जाओ, तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हो, लोगों के कंधे फलांग रहे हो, लोगों को ईजा दे रहे हो। अल्लाह के घर में ईजा नहीं दी जाती है, यहाँ शांति का दर्श दिया जाता है, यहाँ तकलीफ नहीं दी जाती है, यहाँ आराम पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी, आप देखिए एहसासात का भी लिहाज रखा गया है कि आदमी के मिजाज की भी रियायत की गई है। मस्जिद के अंदर आने वालों को मिजाज के खिलाफ भी कोई अमल नहीं होना चाहिए। आपने कहा अगर कोई आदमी लहसुन खाता है, कच्ची प्याज खाता है, तो अल्लाह के घर में आने से एहतराज करे, इसलिए कि यहाँ अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंच सकती है, उसके मुंह के बू से उन्हें ईजा पहुंच सकती है, उनके मिजाज को पर गिना गुजर सकता है, इसलिए ये अमल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। आपने कहा ऊंची आवाज में यहाँ बुलंद बात नहीं करनी है। एक कुछ लोग आते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं, आपकी नजर पड़ती है, आप बुलाते हैं और उसके बाद बासपुर्श करते हैं, कहते हैं कहां से आए हो तुम लोग, बताते हैं हम मदीने से बाहर के दूसरी जगह से हैं, अजनबी लोग हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह के घर में बुलंद आवाज से बात कर रहे थे, मैं तुम लोगों को सजा देता, तुम लोगों पर कोड़े बरसाता अगर मदीने के अंदर होते, और अगर तुम जो है बाहर के अजनबी लोग ना होते तो मैं आज तुम्हारे इस अमल पर तुम्हें सजा देता। गोया कि हम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम अपने खोए हुए सामान का ऐलान नहीं कर सकते हैं। अगर ऐलान किया है किसी ने तो अल्लाह के रसूल की हिदायत यह है कि हम ये कहें ला रद्दहुल्लाहु इलैह, तुम्हारा सामान जाए बर्बाद हो जाए, जाए हो जाए। अल्लाह के घर में शोर कर रहे हो, अल्लाह के घर में अपने दुनियावी मसाइल ला रहे हो, अल्लाह के घर में जो है शोरो गोगा कर रहे हो। आपने फरमाया अगर तिजारत की कोई बोली लगाता है, यहाँ तो बंदा दुनिया से कटने के लिए आता है, यहाँ तो अपने रब से लौ लगाने के लिए आता है, यहाँ तो अपने रूहानी प्रवास के लिए आता है, यहाँ भी अगर दुनियावी झमेले लेकर आओगे, यहाँ भी अगर कारोबार की मशगूलियात लेकर आओगे तो बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कारोबारी बहस करने
करने वाले लोगों के लिए दुआ ये दो कि अल्लाह उनके कारोबार में बरकत ही ना दे, इसलिए कि उन्होंने गुस्ताखी की है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा अपने अमल का जायजा लीजिए। आज हमने मसाजिद को अपनी आना का जरिया बना लिया है, अपनी नफरत, अपनी मसलकी इनात का जरिया बना लिया है। हमारी मसाजिद, कितनी ऐसी मसाजिद हैं जहां बोर्ड लगा हुआ है, फला मसलक के लोग नहीं दाखिल हो सकते हैं, फला मसलक के लोग दाखिल नहीं हो सकते हैं, आमीन कहने वाले दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये नफरत कहां से आई है? ये हमने कहां से सीखा है? अल्लाह के घरों से तो मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह के घरों से तो अमन का पैगाम जाता है, यहां से तो अखुवत और भाईचारगी का दर्स लेके जाना चाहिए। लेकिन हमने इसे दुनियावी झमेलों का मरकज बना रखा है, दुनियावी गंदी सियासत का मरकज बना रखा है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे पर तोहमतें लगाना और एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, नफरत की बोलियों में मिंबर तक से नफरत की बोलियां बोली जाती हैं, दुश्मनी बढ़ाई जाती है, नफरत फैलाई जाती है और मसलकी तंग नजरी की बुनियाद पर लोगों को बांटा जा रहा है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें हकीकी मानों में मसाजिद का जो किरदार है उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हमारे क़ल्ब व नज़र में इसकी अहमियत और इसकी वक़ात को बहाल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमारी हर बंदगी को कबूल फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।